بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ طالبان نے افغانستان میں کو ایجوکیشن پر پابندی لگا دی، کہا تمام برائیوں کی جڑ ہے، قبضے کے بعد پہلا حکم جاری۔ حکمرانی کا منصوبہ تیار، ملا برادر کی کابل میں سرگرم ملاقاتیں، کہا تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری، کئی انڈینز افغان سکھوں ہندوؤں سے اڑان بھرنے سے پہلے پوچھ تاچھ۔ افغانستان سے لوگوں کو باہر نکالنے کا سلسلہ جاری، بائیڈن نے کہا امریکیوں کو واپس لانے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے۔ اینجلا مرکل نے کہا افغانستان کی فوج نازک مرحلے پر ٹوٹ گئی، مضبوط مزاحمت کی امید کر رہے تھے۔ افغانستان میں رشیا کے سفیر نے کہا طالبان کا کوئی بدل نہیں، مزاحمت ناکام ہوگی۔ انڈیا میں 12+ بچوں کے لیے کووڈ ویکسین کو منظوری، اگلے مہینے سپلائی شروع ہوگی۔ جموں کشمیر کے ترال میں انکاؤنٹر، جیش محمد کے 3 ملیٹنٹس ہلاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات افغانستان کی۔ طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد اپنے پہلے حکم میں کو ایجوکیشن یا مخلوط تعلیم پر پابندی لگا دی ہے اور اسے تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ ہرات میں یونیورسٹی پروفیسرز، تعلیمی اداروں اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایک افغان نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی۔ اس فیصلے کے بعد بعض گوشوں میں ان اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وعدوں کے باوجود طالبان میں بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ کچھ دن پہلے طالبان نے کہا تھا کہ وہ عورتوں کا احترام کریں گے۔ 3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد طالبان کے نمائندے اور اعلیٰ تعلیم کے ذمہ دار ملا فرید نے کہا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خاتون لیکچرارز کو صرف لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت ہوگی، لڑکوں کو نہیں۔ طالبان کے سیاسی لیڈر ملا برادر نے جو حکومت بنانے کے لیے سرگرم بات چیت کر رہے ہیں، کہا کہ وہ تمام ملکوں خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان پہنچنے کے بعد سابق صدر حامد کرزئی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور دوسرے عہدیداروں اور گورنر سے بات چیت کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان نے حکمرانی کے ایک منصوبے کو طے کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق داخلی سلامتی اور مالی بحران سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں بنائی جائیں گی۔ طالبان کے دوسرے اہم لیڈر ملا عبدالغنی برادر نے کمانڈرز کو بھی ذمہ داریاں دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ سابق سرکاری عہدیداروں، مقامی کمانڈرز، پالیسی سازوں اور اسکالرز سے ملاقاتیں کرتے ہوئے وہ حکمرانی کے منصوبے پر بات چیت کر رہے ہیں۔
तालिबान के शरीक बानी मुल्ला बिरादर अगली हुकूमत बनाने के बारे में संजीदा बातचीत के लिए इससे पहले काबुल पहुंचे। मुल्ला बिरादर को 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2018 में अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के दबाव में उन्हें रिहा किया गया और उन्हें कतर पहुंचाया गया, जहां उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत में अहम किरदार अदा किया। बताया गया कि काबुल में वो तालिबान लीडर्स और दूसरे सियासतदानों के साथ नई हुकूमत के बारे में सरगर्म बातचीत कर रहे हैं। वो मंगल को कतर से अफगानिस्तान पहुंचे थे। सबसे पहले वो कंधार गए थे, जहां तालिबान का जन्म हुआ था। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो लंबे अरसे तक तालिबान का गढ़ रहा। मुल्ला बिरादर और दूसरे लीडर्स के साथ हुकूमत बनाने पर बातचीत के दरमियान कहा गया कि इस मर्तबा तालिबान का दौर अलग होगा। तालिबान ने कहा है कि वो जिम्मेदारी से काम करेंगे और जवाबदेह होंगे। ये भी कहा गया कि वो पिछले कुछ दिनों में तालिबान की बाज़ कार्रवाइयों की छानबीन करेंगे। एक तालिब ओहदेदार ने बताया कि अगले कुछ दिनों में हुकूमत का नया मॉडल पेश किया जाएगा। तालिबान ओहदेदार ने कहा कि हमने सिविलियंस के खिलाफ जराइम और ज़्यादतियों के बाज़ मामलात के बारे में सुना है। अगर तालिब ऐसा कर रहे हैं तो इन मामलात की छानबीन होगी। उन्होंने कहा कि हम बेचैनी, तनाव और बेताबी को समझ सकते हैं। लोगों का ख्याल है कि हम जवाबदेह नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान के कानूनी, मजहबी और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स अगले कुछ हफ्तों में हुक्मरानी का नया फ्रेमवर्क पेश करेंगे। तालिबान के ओहदेदार ने कहा कि गैर मुल्कियों का अगवा नहीं किया गया, जैसा कि बाज़ खबरें आई हैं। बाज़ लोगों से पूछताछ ज़रूर की गई। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर बदअमनी की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मगरबी मुल्कों के लोगों को बाहर निकालने के लिए एक बेहतर मंसूबा बनाना चाहिए था। अमरीका फ़िलहाल काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी संभाले हुए है। हफ्ते के दिन काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस दौरान वार्निंग दी है कि तारीख के सबसे मुश्किल तख्लिए के नतीजों के बारे में पेश कयासी नहीं की जा सकती। तालिबान का कब्जा होकर 6 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब भी लोग काबुल छोड़ने के लिए जदोजहद कर रहे हैं और एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट्स चलाना एक मुश्किल काम बन गया है। तालिबान के एक ओहदेदार ने बताया कि हमारे फाइटर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। जो बाइडन ने वादा किया कि वो अफगानिस्तान से तमाम अमरीकियों को वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल इस्तेमाल करेंगे। सदर ने कहा कि अब तक 14 अगस्त के बाद से 13,000 और जुलाई के बाद से 18,000 लोगों को अमरीका लाया गया। प्राइवेट चार्टर फ्लाइट्स के जरिए भी हज़ारों दूसरे लोगों को निकाला जा रहा है। कई मुल्कों की तरफ से अपने शहरियों और मददगारों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। इटली ने कहा कि पिछले 5 दिनों में तकरीबन 1,000 अफगान शहरियों को निकाला गया। नीदरलैंड में अफगानियों का पहला ग्रुप पहुंच गया। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि 1400 लोग काबुल से पाकिस्तान आ चुके हैं। जुमे को कई फ्लाइट्स देर से चली थीं और काफ़ी बदनज़मी देखी गई थी। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स होटल से अमरीकी शहरियों को एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान में बैंक्स मुसलसल 7वें दिन बंद रहे, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी पैदा होती जा रही है। एटीएम्स में कैश खत्म हो चुका है। वेस्टर्न यूनियन भी काम नहीं कर रहा है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अफगानिस्तान की फौज एक नाजुक मरहले पर टूट गई। उन्होंने ये बात मानी कि तालिबान के खिलाफ अफगान फौज की मुजाहमत के बारे में गलत अंदाजे लगाए गए थे। एक इलेक्शन प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि मुजाहमत मजबूत होगी। एंजेला मर्केल ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को बचाने पर फिलहाल तवज्जो दी जा रही है। उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान से 400 मजीद रेफ्यूजियों को कबूल किया है। उन्हें अफगान सरहद के करीब एक आरजी कैंप में रखा गया है। ये बात साफ नहीं है कि अफगानिस्तान से कितने लोग उज़्बेकिस्तान पहुंचे। उज़्बेक हुकूमत ने इन खबरों को गलत बताया कि उज़्बेक कमांडर अब्दुर्रशीद दोस्तम और बाज़ दूसरे सीनियर अफगान लीडर्स को मुल्क में पनाह दी गई है। स्पेन में भी अफगानिस्तान से एक हवाई जहाज पहुंचा, जहां एक वजीर ने उनका इस्तकबाल किया। इस जहाज पर 110 लोग सवार थे। इंडोनेशिया ने अफगानिस्तान से अपने सफारती मिशन को पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया है। एक वजीर ने बताया कि यह आरजी कदम है। रोमानिया से मुल्क के 14 शहरियों और बल्गारिया के 4 शहरियों को काबुल से एक फौजी हवाई जहाज में लाया गया।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि 13 मुल्कों ने अब तक परेशान हाल अफगानियों को कम से कम आरजी पनाह देने से इत्तेफाक किया है। अमेरिका इनमें से ज्यादातर को बाद में अपने पास बसाएगा। इन मुल्कों में अल्बानिया, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, चिली, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, मैक्सिको, पोलैंड, कतर, रवांडा, यूक्रेन और युगांडा है। इसके अलावा बहरीन, बरतानिया, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, कजाकिस्तान, कुवैत, कतर, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूएई और उज्बेकिस्तान भी अमेरिका की इस मामले में मदद कर रहे हैं। जारी रखने अफगानिस्तान की खबरों के सिलसिले को अफगानिस्तान में रशिया के सफीर ने कहा है कि तालिबान का कोई बदल नहीं है। रशियन सफीर डेमेट्री ज़ेपकोफ ने कहा कि तालिबान ने हौसला अफजा वादे किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के खिलाफ मुजाहमत नाकाम हो जाएगी। रशिया इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि अफगानिस्तान के हालात का असर सेंट्रल एशिया के मुल्कों पर ना पड़े जहां सोवियत यूनियन के साबिक इलाके हैं। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि काबुल की सिक्योरिटी सूरत हाल तालिबान आने के बाद पहले से बेहतर हो गई है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकतें बदल रही हैं, हम हकीकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तालिबान ने 72 अफगान सिखों और हिंदुओं को इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठने से रोका और उनसे पूछताछ की। बाद में उन्हें जाने दिया गया। हिंदुस्तानी शहरियों के साथ उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकाला गया। बताया गया कि उनका हवाई जहाज हिफाजत के साथ बाहर निकल गया। इससे पहले दूसरे 84 इंडियंस के साथ एक हवाई जहाज ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशांबे पहुंचा। इन हिंदुस्तानियों से भी वहां पर पूछताछ की गई। इससे पहले खबर में कहा गया था कि तालिबान ने इन इंडियंस को गिरफ्तार किया है, लेकिन तालिबान ने इस दावे को रद्द कर दिया। एक ऐसे वक्त जब अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और आलमी सियासत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले तालिबान पर तनकीद की और कहा कि तबाही की ताकतें कुछ वक्त तक छा सकती हैं, हमेशा के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की ताकतें लंबे अरसे तक इंसानियत को दबा नहीं सकती। उनका साफ इशारा अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ था। वज़ीर आज़म ने सोमनाथ में तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखते हुए ये बात कही। मोदी ने कहा कि सोमनाथ के मंदिर को कई बार तबाह किया गया, कई बार मूर्तियों की बेहुरमती की गई और उसके वजूद को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हर तबाहकुन हमले के बाद पूरी शान से मंदिर दोबारा खड़ा हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का हो सकता है, जिसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का असर कश्मीर पर भी पड़ने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। ये भी डर है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ तालिबान पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल कर सकता है। अब बात कोविड-19 की। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इंडिया की सबसे पहली कोविड वैक्सीन को मुल्क में हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने DNA कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइगोव डी को मंजूरी दी, जिससे जायडस कैडिला हेल्थ केयर सेंटर ने बताया है। इस वैक्सीन के 3 मरहलों के तजुर्बे पूरे हो चुके हैं और उसका डेटा बड़ी हद तक सामने आ गया है। बताया गया कि ये वैक्सीन 66.6% असरदार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया पूरे जोश व खरोश के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। उन्होंने बच्चों की वैक्सीन की मंजूरी को एक यादगार लम्हा करार दिया। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये इंडिया में मंजूर होने वाली 6ठी वैक्सीन है। ये वैक्सीन सितंबर से सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद स्कूल्स दोबारा खुल जाएंगे। अब तक इस वैक्सीन की कीमत नहीं बताई गई। इंडिया में 34,457 नए कोविड केस पाए गए हैं और 375 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में ये बात बताई। ये भी कहा गया कि अब तक मुल्क में 57 करोड़ 61 लाख वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। ईरान में कोविड-19 की वजह से पिछले 24 घंटों में 544 मौतें हुई हैं। इसी मुद्दत के दौरान 24,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। ईरान मिडल ईस्ट में कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्क है। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक ताज़ा एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। अब तक इन मिलिटेंट्स की पहचान नहीं की गई है, लेकिन उनकी लाशें मिल गई हैं। इन लाशों के पास से 3 राइफल्स भी मिली हैं। जुमे को भी श्रीनगर के करीब 2 मिलिटेंट्स हलाक हुए थे। हालिया अरसे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर एनकाउंटर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने अफगानिस्तान में को एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी, कहा तमाम बुराइयों की जड़ है कब्जे के बाद पहला हुक्म जारी। हुक्मरानी का मंसूबा तैयार, मुल्ला बिरादर की काबुल में सरगर्म मुलाकातें, कहा तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, कई इंडियंस अफगान सिखों हिंदुओं से उड़ान भरने से पहले पूछताछ। अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी, बाइडेन ने कहा अमरीकियों को वापस लाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। एंजेला मर्केल ने कहा अफगानिस्तान की फौज नाजुक मरहले पर टूट गई, मजबूत मुजाहिमत की उम्मीद कर रहे थे। अफगानिस्तान में रशिया के सफीर ने कहा तालिबान का कोई बदल नहीं, मुजाहिमत नाकाम होगी। इंडिया में 12+ बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन को मंजूरी, अगले महीने सप्लाई शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के तराल में एनकाउंटर, जैश ए मोहम्मद के 3 मिलिटेंट्स हलाक। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।